السلام علیکم معزز خواتین وزار، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، 8 فروری کے انتخابات کے بعد 14 روز میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے فارم 45 اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ یہ وہ فارم 45 ہے کہ جس پر اب تک سب سے زیادہ بحث ہوئی ہے، سب سے زیادہ سوال اٹھائے گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو انتخابی نتائج یا جو نوٹیفیکیشنز جاری ہوئے ہیں فارم 47 کے تحت، ان کو فارم 45 پہ بیس ہونا تھا، لیکن فارم 45 جو پی ٹی آئی کے پاس اور پی ٹی آئی کے علاوہ دیگر اور پولیٹیکل پارٹیز کے یا آزاد امیدواروں کے پاس موجود ہیں، وہ نتیجہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ اور آج جب 26 روز کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے فارم 45 قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اپلوڈ کیے گئے ہیں، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی irregularities ہیں۔ بہت سے فارم 45 ایسے ہیں جہاں پر اوور رائٹنگ ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کہیں پر کوئی بھی ایسی بات جب سامنے آتی ہے تو اس کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور جس طرح کہا بھی جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی والے چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں تو یہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں، اور ان کی من گھڑت خبریں، من گھڑت اطلاعات ہوتی ہیں، اور یہ اسی طرح کی کنفیوژن کو کریٹ کرتے ہیں۔ اور جو فارم 45 ہے، نہ جانے ہو سکتا ہے پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ فارم 45 بھی خود کے بنائے گئے ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے، اور اس طرح سے کچھ ہم نے دیکھا بھی کیا فرام دی اپوزیشن یا پی ٹی آئی کے جو اپوننٹس تھے ان کی طرف سے ایسا کہا بھی گیا۔ لیکن یہ جو فارم 45 کی بات میں کر رہا ہوں، جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی، اور جن کی اوور رائٹنگز کی میں بات کر رہا ہوں، جن کی irregularities کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کہیں سوشل میڈیا سے حاصل کردہ نہیں ہے۔ یہ کہیں کسی سوشل میڈیا یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے الیکٹرانک میڈیا کو یا لوگوں کو نہیں بھیجے گئے ہیں کہ جی آپ اس کی تشہیر کریں اور اس پر بات کریں۔ یہ خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے ہیں، اور وہیں سے یہ دیکھنے کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں پرابلم ڈیفینیٹلی موجود ہے۔ اب جب یہ انتخابی بے ضابطگیوں پر بات ہو رہی ہے، نتائج کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، حکومت تو بن چکی، صوبائی حکومتیں بھی بن چکی ہیں، پرائم منسٹر نے، چیف منسٹر نے اپنے عہدوں کا حلف بھی اٹھا لیا ہے، کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے، یقیناً ہمارے لیے مسائل بے شمار ہیں اکانومی کو لے کر۔ وہیں پر مساق معیشت اور مساق مفاہمت کی جب بات ہوتی ہے تو کیا مفاہمت ممکن ہو پائے گی ایسے ماحول میں کہ جب الیکشنز کے ریزلٹس کو کوئی تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے اور ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کی جا رہی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم این این سے اختیار ولی خان صاحب نے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ اختیار صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے شوکت یوسف زئی صاحب نے۔ شوکت صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ اور ماہر قانون ہمیں جوائن کیا ہے حافظ احسان احمد صاحب نے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ حافظ صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور کچھ دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں تیمور تالپور صاحب جوائن کریں گے۔ جیسے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ہم ان کو ڈسکشن میں بھی اس کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم شوکت یوسف زئی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ فارم 45 کی جو کہانی ہے، جو فارم 45 کی بے ضابطگیاں ہیں، یہ کیا صرف پنجاب اور سندھ، بلوچستان صرف یہیں پر ہیں، یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہے، یا کے پی کے میں بھی ایسی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اب تو یہ بالکل واضح بھی ہو گیا، ساری دنیا کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کیسے الیکشن تھے۔ انہوں نے جو لوگ مقرر کیے تھے اپنے جو ہماری مخالف پارٹیاں تھیں، جو ہماری مخالف پارٹیاں تھیں، ان کے کہنے پر ان کی مرضی کے لوگ لگائے گئے تھے جو پری پول ریگنگ بھی کرتے رہے، اور جب ان سے بھی نہ ہوا، پھر اس کے بعد جب الیکشن ڈے تھا اس میں بھی جعلی کاپیاں بھیجی گئی، لوگوں کو کاپیاں دی گئی اپنے اپنے پسند پسندیدہ امیدواروں کو۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کے تھرو پہ چیلنج کرتا ہوں، کل میرے الیکشن کمیشن میں میری پیشی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک حلقہ کھول دے، حلقہ بھی نہیں، حلقہ تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، ایک پولنگ اسٹیشن کھول دے، اور اب جن لوگوں نے کیا وہ خود بتا رہے ہیں کہ جی اس کے اندر پوری کاپیاں پڑی ہوئی ہیں، تو یہ کیا الیکشن تھے؟ بہرحال پھر اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ فارم 45 پہ ہی فیصلہ کر لو چلو، اور فارم 45 آپ یقین کریں کہ ایک ہمارا جو قومی اسمبلی کا امیدوار ہے 20,000 سے زیادہ لیڈ میں جیت گیا اور 47 میں وہ ہار گیا۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں، اس سے کیا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بیٹھے ہیں میثاق مفاہمت کریں، میثاق جمہوریت کریں اور میثاق معیشت کریں کیونکہ ملک مشکل میں ہے۔ بھئی ملک کب مشکل میں نہیں رہا ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں یہی سن رہے ہیں کہ ملک مشکل میں ہے، معیشت مشکل میں ہے، معیشت پاکستان بحران میں ہے۔ تو یہ بحران تو اس لیے ہے نا کہ آپ الیکشن کے نتائج کو آپ تسلیم نہیں کرتے،
इलेक्शन जो है वो आप फेयर कराते नहीं है, फिर आप कहते हैं कि जी मुल्क मुश्किल में है, तो मुल्क जरूर मुश्किल में होगा, क्योंकि अवाम, देखिए अवाम ने जिनको वोट दिया है वो एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। अगर आप फिर सख्त फैसले भी करें तो अवाम मान लेती है कि ठीक है ये मुश्किल हालात है, लोग मान भी लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप जाली मैंडेट लेकर लोगों को बिठाएंगे असेंबली में, और कल अगर वो ये कहें कि जी ये तो IMF की शराइत है, हमने मानने पड़ेंगे, हमने बिजली और महंगी करनी है, गैस और महंगी करनी है, तो ये महंगाई जो कल जो तूफान आएगा, ये तो जून जुलाई तक भी ये हुकूमत नहीं पहुंच सकेगी। ये तो मैं आपको गारंटी करता हूँ। इस दफा जो अभी से बिल आना शुरू हो जाएंगे गर्मियों में बिजली के, तो ये कौन अफोर्ड करेगा? ये तो लोग सड़कों पे आएंगे, फिर तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होगा। नहीं शौकत यूसुफ साहब, लोग पहले भी माजी में हम ये बातें तो सुनते आए हैं ना, चाहे वो आपकी हुकूमत हो, PMLN की हो, या उससे पहले पीपल्स पार्टी की, कि जी बहुत ज्यादा महंगाई है, लोग सड़कों पे निकलेंगे, लोगों से अब ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। लेकिन हर मरतबा जब प्राइसेस बढ़ती गई हैं, हर दौर में बढ़ती गई हैं, लोग बिल जमा करवाते रहे हैं। नहीं देखें, वो इस तरह बिल था ना, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो लोगों के सैलरी के उसमें था, उसके डोमेन में आ जाता था। अब मुझे बताएं कि सैलरी वही है, या तो इस हुकूमत में सैलरी बढ़ेगी तो तब जाके मामला हल होंगे ना। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो सैलराइड तबका है जी, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ जो रोजाना दिहाड़ी करता है। तो वो तो देखे ना, आप तो वो पूरे दिन दिहाड़ी कर भी लेना तो वो अपने बच्चों को नहीं वो कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप बताएं कि लोग क्या करेंगे? अभी तक तो उन हालात में लोग कहते थे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब तो सचमुच की खुदकुशियां होंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों का गुस्सा देखे ना, पहले जैसे भी होता लोगों को पता नहीं चलता, अब तो लोगों को पता चल गया है ना कि जाली हुकूमत है। हाँ जी। तो अब तो मजीद गुस्से में आएंगे कि अच्छा जी आप जाली करके आए भी, आप लोग इनकी बात कैसे मानेंगे? आप मुझे बताएं। ये तो बाजारों में जा भी नहीं सकते, ये आवाम के पास भी नहीं जा सकते। जिन लोगों ने जो 47 फार्म के जो लोग असेंबली में पहुंचे हैं वो अपने हलकों में जाए ना, क्यों नहीं जाते हैं? वो जा नहीं सकते, लोग उन पे टमाटर फेंकेंगे। ठीक है, मैं इख्तियार वली साहब की तरफ, जी मैं इख्तियार वली खान साहब आपकी तरफ आते हुए, आपने आज ये जो फॉर्म 45 अपलोड हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर, यकीनन आपने उनको डाउनलोड करके देखा होगा कि इलेक्शन ये फॉर्म 45 क्या कहते हैं, जिनका इतना शोर था। जाहिर बात है जब ये एक मामला चल रहा हो तो उसमें तो बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। आपने ये देखा है कि जिस तरीके से अब ये एक ओन चौधरी साहब का लाहौर का एक पोलिंग स्टेशन है, डिसेंट पब्लिक स्कूल वाल्टन लाहौर का, इसमें जो ओवर राइटिंग है वो साफ पता चल रहा है कि मोहम्मद ओन सकलैन 173 वोट, और उस एक को 9 बना दिया गया है, और यहां पर सलमान अकरम राजा साहब के 273 वोट हैं। ये एक मिसाल है, इस तरह की और बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। तो क्या इख्तियार वली खान साहब, आप माशाल्लाह जमहूरी आदमी हैं, क्या ये जमहूरियत के साथ मजाक नहीं? थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, मैं आई वुड रिस्पॉन्स, मैं इनके जो बात थी भाई की उसको रिस्पॉन्स करूंगा, रिस्पॉन्ड दूंगा थोड़ा। यही बात मैं करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में खड़े होकर कि हमें हमारे फॉर्म 45 जो ओरिजिनल हैं वो दे दिए जाएं। हमें यहाँ पे तो फॉर्म 45 आधे क्या, हमें तो 25% भी नहीं मिले, जो मिले हैं वो भी ओवर राइटेड हैं। जो हम मांग रहे हैं, मैं गया हूँ अपने RO के पास, उसको मैंने दरखास्त दी है, मुझे वहां से नहीं मिली। उसने कहा इलेक्शन कमीशन के पास जाए, मैंने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी, उन्होंने मुझे RO के पास भेज दिया। RO कहता है मैंने इलेक्शन कमीशन को दे दी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं अब जाऊं और हाई कोर्ट से मैं कहूं कि मुझे मेरे फॉर्म 45 दे दें। जो मेरे पास रिजल्ट है वो कुछ और है, जो फॉर्म 47 में है वो कुछ और है। तो जो बात ये भाई PTI के मेरे दोस्त आदिम दोस्त शौकत यूसुफजई साहब इधर कर रहे हैं जी, जो ओन चौधरी है उसके हल्के की बात करते हैं, लेकिन मेरे हल्के की बात नहीं कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सूबे का मतलब इस मुल्क का तीसरा बड़ा सूबा है। हमारे सूबे में जो इनके पास मैंडेट है हम उसको तस्लीम नहीं करते हैं, कौम उसको तस्लीम तो नहीं फिर करती। इसमें इख्तियार वली खान साहब आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शौकत यूसुफजई साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी दीगर जमातों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो फिर कसूर किसका? कसूर तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुआ ना। आप माशाल्लाह बाशऊर आदमी हैं, आपको ये पता है ना कि कहीं पे भी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जहां पर ओवर राइटिंग हो तो वहां पे काउंटर साइन करवाए जाते हैं। यहां पर जो आपके वहां पर पोलिंग एजेंट्स थे उनके काउंटर साइन भी नहीं करवाए कि भाई काउंटर साइन करवा दो अगर ओवर राइटिंग की कोई वजह बन गई है, लिखते हुए वहां पर प्रिजाइडिंग अफसर
खैबर पख्तूनख्वा में जो इनके पास फॉर्म 45 हैं उस पे भी दस्तखत नहीं है। हमारे ये चार्जेस हैं, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर पीटीआई वालों को, जो भी है, इंडिपेंडेंट है, पीटीआई है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, या वहदत, आप इनको कह लें, इनके पास इनको ब्लैंक कापियां दी गई थी, इन्होंने अपनी मर्जी से पोलिंग कराई थी। अब मुझे ये बताएं फॉर्मूला क्या है जो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में आपके पास मैंडेट आ गया, ये ठीक है, तो क्या बलूचिस्तान में इलेक्शन गलत हुआ? कैसे मान लें कि सिंध में, कराची में इलेक्शन गलत हुआ और यहाँ पर ठीक हुआ? फिर तो हमारा मौकफ भी यहाँ पर ठीक है कि आपके पास मैंडेट है वो भी गलत है। ये अगर बात करते हैं कि हम इन नताइज को तस्लीम नहीं करते, तो भाई मैं आपको कहता हूं कि हम आपके नताइज को तस्लीम नहीं करते। 2018 में जो आपके पास मैंडेट था वो चोरी का था, वो कौमी मैंडेट था ही नहीं। आपने क्या किया? तो उससे पहले 2018 से पहले तो कोई महंगाई नाम की चीज ही नहीं थी, ना पेट्रोल महंगा था, ना आटा महंगा था, ना रोटी महंगी थी, ना गैस, ना बिजली। इसमें तो सैकड़ों फीसद इजाफा फिर आपने किया। फिर जाते जाते फिर फरवरी 2022 में जो इमरान खान ने फिर मुआहिदा किया और IMF के पास पाकिस्तान की कुछ था कि इख्तियार वली साहब, आपकी आवाज जो है ना वो हमें सही से सुनाई नहीं दे रही। आपकी नेट की कनेक्टिविटी में मसला है। मैं आपकी तरफ दोबारा फिर आता हूं ताकि आप बात मुकम्मल कर सकें, और क्योंकि बार बार आवाज जो है वो ब्रेक कर रही है, सही से हम सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए फिर बात सुनने का मजा भी नहीं आ रहा है। हाफिज एहसान साहब आपकी तरफ आते हैं, एंड थैंकफुली आप स्टूडियोज में हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बताइए हाफिज एहसान साहब कि ये इसका स्टेटस क्या होगा फॉर्म 45 का, जो अभी ये इरेगुलरिटीज सामने आई हैं? क्या ये एक मामूली सी बात है, रूटीन की बात है, या ऐसा नहीं हुआ करता कि जी उस पर ओवर राइटिंग हो? और अगर ओवर राइटिंग है तो क्या उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है कि जिसपे ऊपर कोई काउंटर साइन भी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अब आपने दोनों साइड्स के व्यूज आपने सुन लिए हैं। एक साइड कह रही है कि पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं है, 47 है, और दूसरे भी यही आपसे कह रहे हैं कि फॉर्म 45 हमें ठीक नहीं मिला और 47 पे आपके हैं। अब अगर आप इसकी हिस्ट्री देख लें, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ इशारा किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया किसने है? इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया 18th अमेंडमेंट के बाद, और एक गिव एंड टेक का अरेंजमेंट था कि जी कुछ मेंबर्स एक पार्टी लगाएगी, कुछ एक लगाएगी, कुछ ट्रेजरी लगाएगी, और बुनियादी उसके अंदर आइडिया इनका यही था कि जी हम ऐसे बंदे लेके आएंगे जिन पे सबका कंसेंसस होगा और वो इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठ के इस मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। और ये आपके मुल्क के अंदर अमेंडमेंट्स आई थी 2010 के अंदर, और उसी के कॉन्सिक्वेंस के अंदर 2013 का इलेक्शन कमीशन भी बना। अब 2013 के 18 देख लें, 18 से अब हम 24 पे आ गए हैं। 2013 का जरा नैरेटिव निकाल ले कि जो ट्रेजरी के अंदर थे उनका क्या नैरेटिव था और जो ऑपोजिशन के अंदर थे उनका क्या नैरेटिव था। ना उन्होंने इलेक्शन को कहा कि ठीक हुआ है और ना उन्होंने कहा कि इलेक्शन को माना गया है। और ये कंट्रोवर्सी जो है हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ जाते जाते जो है एक प्राइम मिनिस्टर भी घर चले गए, और उसके बाद जब दूसरे उसके अंदर आए, प्राइम मिनिस्टर आए, तो जब हम 2018 के अंदर गए तो फिर आपने देखा कि नई टर्म्स जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई कि जी सिलेक्टिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर आ गए। अब जो सिलेक्टिव साहब थे उन्होंने कहा जी कि पूरे मुल्क के अंदर बेहतरीन इलेक्शन हुए हैं, और वो जो दूसरी साइड वाले थे उन्होंने कहा जी कि नहीं, इस मुल्क के अंदर RTS बैठा है। अब यही कश्मकश जो थी वो आपने देखा कि 3-3.5 साल के अंदर रही, और उसके बाद एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था उसके चक्कर के अंदर हमारे पाकिस्तान के सारे इदारों को मिलाइन कर दिया गया। उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट भी आ गई, जुडिशरी भी आ गई, पॉलिटिकल पार्टीज भी आ गई, और सफरर कौन हुआ? पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान की आवाम उसके अंदर आया। उसके बाद जब दोबारा अब इलेक्शन हुए हैं तो वो एक नैरेटिव फिर क्रिएट हुआ। जो हारे हैं वो कहते हैं कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक हमें रिजल्ट्स दें और 47 नहीं है, और जो जीते हैं वो भी यही कहते हैं कि जी जहां हम आ रहे हैं वहां पे फॉर्म 45 हमें नहीं मिला, 47 जो है ये उनका है जी। अब अली इसका हल क्या है?
اس کا حل نہ یہ ہم ان ٹاک شوز کے اندر کر سکتے ہیں، نہ ان چوکوں چوراہوں کے اندر کر سکتے ہیں. اس کا حل پھر اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر بائی فورس ہمیں جانا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی فورم ہے جو اس کو ڈیسائیڈ کرے. وہ اس کا فرسٹ فورم وہ ہے کہ جو انہی لوگوں نے اپنا الیکشن کمیشن بنایا تھا اور انہی کے بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے. اب وہ اگر اپنا اسپیشل ٹریبیونلز بنا دیتا ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ چلا جاتا ہے ہائی کورٹس کے اندر. ایک سیکنڈ، میں I'm sorry to interrupt you there، لیکن یہ جو ٹرائبونلز والا معاملہ ہے اس پر تو ہمیں ایگری کرنا پڑے گا، اور دس از ناٹ اے سیکریٹ، یہ اوپن بات ہے کہ ٹرائبونلز تو ایک ٹرک کی بتی ہے کہ اس کے پیچھے اگر کوئی امیدوار لگ جائے گا. علی نہیں ہے، علی اس طرح نہیں ہے، نہیں علی اس طرح نہیں ہے، علی اس طرح نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، کیسز ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے صرف 2 ججز ہیں جن کو ٹرائبونلز میں لے کر جایا جا رہا ہے. تو کیا دو نہیں ہے، دو نہیں ہے، نہیں دو نہیں ہے، نہیں دو نہیں ہے. پنڈی بینچ کے اندر جو ہے وہ علیحدہ بیٹھے ہیں، ملتان کے اندر علیحدہ بیٹھے ہیں، بہاولپور کے اندر علیحدہ ہیں، لاہور کے اندر علیحدہ ہیں، پشاور کے اندر علیحدہ ہیں، اور اس کے بعد آپ کا سوات کے علیحدہ. ہر جو آپ کا ہائی کورٹ کا بینچ ہے وہاں کے اوپر ایک اسپیشل ٹریبیونل جو ہے وہ بنا ہے جی. اس کے اب اگلی چیز یہ ہے کہ وہ ٹریبیونلز کے اندر لوگ کون سے ہیں؟ وہ آپ کے سرونگ ہائی کورٹ کے ججز ہیں. وہ وہی ججز ہیں کہ جن کے اوپر آپ جب آپ کی فیور کے اندر فیصلہ آئے تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے اور رول آف لا اس ملک کے اندر ہے اور اس سے بہتر جج نہیں ہے. اب یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ علی ہمیں سٹاپ تو کرنا پڑے گا. اگر تو ہم نے چوکوں چوراہوں کے اندر کرنا ہے تو پھر اس ملک کے اندر الیکشن حل ہی کوئی نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے جو تگڑا آئے وہ اس کے اندر چلاتا رہے. لیکن اگر ہم کسی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر آئے ہیں اور ریگولیرٹیز آئی ہیں تو ان ریگولیرٹیز کو کسی نہ کسی فورم کے اندر یہ ٹرائبونلز کتنے وقت میں فیصلہ کریں گے؟ ٹریبیونل کا علی جو ہے جو ان کا سیکشن 139 کے نیچے لے کے اور 144 تک ہے، ٹریبیونل نے فیصلہ کرنا ہے 120 دن کے اندر. اب یہ ہے کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو جیتے لوگ ہیں وہ اس پروسیس کو ڈیلے کرتے ہیں تاکہ ان چیزوں کو ڈریگ کریں. اب دونوں پارٹیز کی یا تینوں پارٹیز کی آپ اگزامپل دیکھ لیں کہ کوئی بھی جیتا ان کا کینڈیڈیٹ. مثلا اگر آپ قاسم سوری کو دیکھ لیں تو 5 سال پورے ہو گئے سپریم کورٹ کے اندر، بات کے اندر کیس لگا. اسی طرح پی ایم ایل این کے لوگ دیکھ لیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر لے لیں. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس پروسیس کو یہ ڈیلے کرتے ہیں. ہاں ایک چیز کے اندر یہ ایگریمنٹ کر لیں، اور وہ یہ ایگریمنٹ کر لیں کہ جی جو ہائی کورٹ کے سرونگ ججز ہیں ہمیں ان کے اوپر ٹرسٹ ہے، وہاں پہ پٹیشن جاتی ہیں اور ہم اس چیز کا کرتے ہیں کہ ہم اس پروسیس کو 120 دن کے اندر ہونے دیں گے. اور وہاں میں حافظ احسان صاحب آپ کی طرف دوبارہ پھر آتا ہوں. اختیار ولی صاحب سے ہماری پہلے جب بات ہو رہی تھی مکمل نہیں ہو سکی کیونکہ ان کی کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا. اختیار صاحب کنیکٹیوٹی ٹھیک ہو گئی؟ جی بالکل. اب مجھے یہ بتائیے آواز اور تصویر دونوں اوکے ہیں؟ جی اب تک تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو میرے فاضل دوست بھائی بات کر رہے تھے شوکت یوسف زئی صاحب، جو بات یہ یہاں پر بیٹھ کے کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن ٹھیک ہے لیکن پنجاب میں ان کو پرابلم ہے، سندھ میں ان کو پرابلم ہے، کراچی میں ان کو پرابلم ہے، کوئٹہ میں ان کو پرابلم ہے. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں خیبر پختونخوا میں پرابلم ہے. ہمارے پاس 25% ہمیں فارم 45 نہیں دیے گئے، وہ ہمارے ایجنٹس کو نہیں دی، ان کو سفید کاغذ پر لکھ کے دے دیا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے آپ کو بلینک بیلٹ پیپر دیے گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے فورجری کی گئی ہے فارم 45 میں. پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل وٹ ایور یا انڈیپینڈنٹ یا جو بھی ہے ان کو فیورٹائز کیا گیا ہے، ان کو جو ہے تو ایک کور دیا گیا ہے اور ان کو جتایا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں. اور سیدھی بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو آپ کے پاس مینڈیٹ ہے یہ قومی مینڈیٹ نہیں ہے. آپ بھی یا آئے ہیں کسی اور طریقے سے آئے ہیں یا اگر کوئی آپ کو لایا ہے تو بھی اس میں 2 نمبری. اختیار صاحب کون لایا ہے، کس نے کی یہ 2 نمبری، کون کس کو لا رہا ہے، کون کس کو نکال رہا ہے، وہ بھی تو بتا دینا. وہ آپ پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ ان پر. ڈپٹی کمشنرز تھے، آر اوز تھے. 10 سال ان کی حکومت رہی ہے اور انہوں نے اتنا خیبر پختونخوا کی انتظامی مشینری کو اور بیوروکریسی کو اتنا پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، اتنا پولیٹیسائز کیا ہے کہ آپ کی سوچ ہے تبھی تو جا کے یہ صوبہ ہمارا کہیں جا کے 1000 ارب روپے کا مقروض ہوا ہے. اور آج اللہ کی شان ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ مقروض صوبے کا جو پاکستان کا سب سے مقروض صوبہ ہے اس کے وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول وزیر اعظم سے بھی بڑھ کر ہے. خیر اس کو چھوڑے، اس پہ اور بات کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انہوں نے بات کی مہنگائی کی.
तो 2018 के इलेक्शन से पहले तो कोई महंगाई नहीं थी, वहां पर तो ना पेट्रोल महंगा था, ना डीजल महंगा था, ना बिजली महंगी थी, ना गैस, ना रोटी, ना आटा, ना गंदम की कीमत। आप आए तो उसके बाद चीजें बढ़ती गई, चलती गई और महंगाई आती गई। 2022 फरवरी में आपके लीडर कप्तान साहब जो इमरान खान हैं, वो जो मुआहिदा IMF के पास करके गए हैं, जिसमें पाकिस्तान की हर चीज गिरवी रखवा दी, और उसके बाद फिर रोटी क्या तो गैस क्या पेट्रोल क्या, आपने तो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के हाथ पैर बांध कर उनके आगे अपने फेंक दिए कि इनका गला भी काटो, हाथ पैर भी काटो। मुझे इख्तियार साहब एक वक्फा लेना है, मुझे वक्फा लेना है। जो आपने भी KPK की बात की है कि आपको भी वहां पर वही शिकायत हैं, और आपने बात की कि जी चूंकि 10 साल से वहां पर PTI की गवर्नमेंट रही है, तो कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और जितने भी ROs हैं वो सब पॉलिटिसाइज्ड हैं। तो इस पर बात करेंगे और शौकत यूसुफजई साहब से पूछेंगे वक्फे के बाद कि उनका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमें कुछ देर में तैमूर तालपुर साहब भी ज्वाइन करेंगे, तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तैमूर तालपुर साहब, हुकूमतें बन गई, वक्फे से पहले हमने शौकत यूसुफजई साहब से, हाफिज एहसान साहब से और इख्तियार वली खान साहब से हमने बात की, जो आज फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे, जिसमें इर्रेगुलरिटीज हैं। शौकत यूसुफजई साहब ने अपनी शिकायत या अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया, और इसी तरह से इख्तियार साहब का कहना था कि जी हमें भी KPK में बेशुमार ऐसे हलके हैं कि जहां पर हमें फॉर्म 45 नहीं मिले हैं। आप इस पर क्या कहते हैं, जो इर्रेगुलरिटीज, जो ओवर राइटिंग हम देख रहे हैं इन फॉर्म 45 पे जो अपलोड हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ अली भाई, अगर आप पास में जाएं तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इर्रेगुलरिटीज, गलतियां, कोताहियां हर इलेक्शन में होती हैं, और इसमें भी अगर कुछ हुई हैं तो इनका पूरा इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या ये एक ह्यूमन एरर था या ये जान के किया गया। तो दिस हैज टू बी सॉर्टेड आउट कि ये पर्पस पे हुआ था या ये एक आम गलती है जो ह्यूमन माइंडसेट में हमेशा पाई जाती है हमारे पास। ठीक, लेकिन आपकी नजर में ये क्या है? बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट वन पोलिंग स्टेशन, बल्कि बेशुमार ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं, बेशुमार हलके हैं कि जहां पर ये हुआ है। हमारे पास पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है, तो जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है तो आप जरा अकाउंट फॉर करें कि कितनी पोलिंग स्टेशन होगी। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास तकरीबन 170 पोलिंग स्टेशन थी मेरे हलके में जी। मेरे वालिद साहब नवाब यूसुफ ठाकुर साहब की 650 पोलिंग स्टेशन थी। तो एक शख्स की अगर 600 पोलिंग स्टेशन हैं तो कितने कैंडिडेट पाकिस्तान के हो गए नेशनल असेंबली के, कितने प्रोविंशियल असेंबली और कितनी ये होगी। तो मेरे ख्याल से 1, 2, 10, 20, 40, 50, 100, 200 तक की अगर होती हैं तो ये 1% गलती भी नहीं होती। आप 1% गलती तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, 0.5% गलती तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो आपकी नजर में ये ह्यूमन एरर, और इसको ह्यूमन एरर कंसिडर करते हुए लेट गो करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से इसको लेट गो नहीं करना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मेरा एक अदना अंदाजा है कि ये ह्यूमन एरर होगा, क्योंकि 0.5%, 0.5% एरर हो सकता है, बट दिस शुड ऑल्सो बी थरली इन्वेस्टिगेटेड कि वॉज इट एरर, ताकि सब लोगों के साथ जो गलतफहमियां पैदा हो रही हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक। शौकत यूसुफजई साहब, आपने तैमूर साहब की भी बात सुनी कि जी ह्यूमन एरर, लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। उससे पहले इख्तियार साहब ये फरमा रहे थे कि जी आप पंजाब की बात कर रहे हैं या PTI उन हलकों की बात कर रही है जहां पर उनके उम्मीदवार हारे हुए हैं। उनका कहना था कि जी आपके कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, आपके ROs ये सारे पॉलिटिसाइज्ड हैं KPK में, और आपकी जो 10 साल हुकूमत रही है उसकी वजह से आपके लिए इन लोगों ने काम किया है। और जो PTI क्लेम करती है कि पंजाब में या कराची में या मुल्क के और दीगर सूबों में PTI के साथ हुआ है, वो PMLN के साथ हुआ है KPK में। देखिए, या तो ये आवाम तो समझ रहे हैं कि आवाम कुछ समझती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के आवाम में बड़ा सियासी शऊर है, और वो इनको भी सुन रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं। मैंने KP की बात नहीं की है, ना मैंने पंजाब की बात की है। मैंने कहा पूरे पाकिस्तान में उसमें KP भी आता है, KP पाकिस्तान का हिस्सा है। हर जगह हमारे साथ हुआ, और ये मुझे बताएं कि हमारे साथ हुआ क्या है। क्या ये अपने आप को बड़ा मासूम समझ रहा है, इसको नहीं पता है? मैं तो पूरे 10 दिन भी अपने हल्के में नहीं गया हूँ, अपने कंपेयर नहीं कर सका हूँ। कभी 3 MPO लगाते थे, कभी क्या, जिसके और किस RO ने हमें बताया। मुझे आज तक ये मेरे पास ये बंडल पड़ा हुआ, आज तक मेरे फॉर्म 45 कंप्लीट नहीं हुए।
तो मतलब मैं तो कोई अपनी के लिए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि पंजाब में बात कर रहा हूँ या सिंध की बात कर रहा हूँ, मैं तो खैबर पख्तूनख्वा की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये देखें, इस तरह हो नहीं सकता है कि आप हर दफा ये ह्यूमन एरर डिक्लेयर करके आप कहें कि जी गो अहेड, तो ये कैसे होगा? आप मुल्क में अगर आप तरक्की चाहते हैं, मुल्क की क्राइसिस है, आप कहते हैं क्राइसिस को हल करेंगे, तो उसमें तो अवामी लोग आना चाहिए ना, जिनको अवाम मैंडेट दे। अगर आप चोरों लुटेरों को बिठा देंगे, उनसे कहें कि जी आपने मैंडेट चोरी किया है, बस खैर है, पाकिस्तान मुश्किल में है तो ये मसला हल हो जाए, तो इस तरह तो नहीं होता है जी। ये निगरान दौर में हमारे ऊपर जो मजालिम हुए हैं, जिस तरह हमारे कंपेन नहीं कर सके, हमारे लोगों से प्री पोल रिगिंग ही थी ना ये, कि लोगों के हम सारे एक दफा तो हमारे कागजात मुस्तरद हो गए, मैं भी नाअहल हुआ था, फिर हाई कोर्ट से बहाल हुआ, तो हमारे साथ तो हमें तो एंगेज रखा गया। और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है भाई। ये आरोप, अगर आरोप तुम्हें फॉर्म 45 नहीं दे रहा है तो इसमें आरोप का क्या, हुकूमत ये पीटीआई का क्या कसूर है? यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो मुतासिबाना रवैया अपनाया इलेक्शन कमीशन ने, तो वही तो हम कह रहे हैं। वहाँ आप इलेक्शन कमीशन को साफ डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी ये तो बड़े अच्छा लोग हैं, और मलबा हम पे डाल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोगलापन नहीं चलेगा, सीधी सीधी बात करें। इलेक्शन कमीशन ने अगर केपी में किया है तब भी धांधली की है तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, अगर पंजाब में हुआ है तो वो भी इसके वही जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो इलेक्शन कमीशन, हम तो उसको कह रहे हैं कि वो नालायक है भाई, जाए जान छोड़े इस मुल्क की। आप इलेक्शन के बाद हमेशा लोग उम्मीद में होते हैं कि ये हुकूमत आएगी, अवाम को रिलीफ देगी। आपको उम्मीद है, आप तवक्को करते हैं ट्राइब्यूनल से कि ट्राइब्यूनल्स में आपके साथ इंसाफ होगा? हाफिज एहसान साहब ने बताया है कि जी 120 दिनों में ट्राइब्यूनल ने फैसला किया। देखें, हम तो जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल में भी जा रहे हैं, हम देखें, हम लीगल बैटल भी कर रहे हैं, हम अपनी असेंबली में भी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा इलेक्शन कमीशन जो हमारी सीटें लेके दूसरों से कहे कि आप ले लें, तो ये कैसा, मतलब ये कोई इलेक्शन है? इसमें तो इसको इलेक्शन नहीं कहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये इलेक्शन तो नहीं थे ना। तो अगर देखें, हमें किसी ने फायदा पहुंचाया तो हमें किस तरह फायदा पहुंचा सकता था? हमें तो कैंपेन ही नहीं करने दिया गया। हमारी तो सीटें इसी तरह, यानी रात को हम सारे जीते हुए, सुबह जो है हम सारे हारे हुए, तो हमसे तो बहुत सारे लोगों से तो सीटें इस तरह ली गई हैं। तो रातों रात कौन सा फॉर्म 45 कहाँ से चेंज हुए? ये आपने इलेक्शन कमीशन की साइट पे अपने हल्के के, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साइट पे अपने हल्के के फॉर्म 45 देखे? सर जी मैंने देखे हैं। हम तो यही कह रहे हैं ना कि फॉर्म 45 पे ही फैसला कर लें। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो ये जो इनको जो कापियां मिली थी, ये जो बात कर रहे हैं मेरे भाई ने जो बात की कि इनको कापियां हमें नहीं मिली थी, वो इनको मिली थी। हमें कहाँ से मिली थी? हमें तो छोड़ ही नहीं रहे थे, इलेक्शन में अलाउ ही नहीं कर रहे थे, हमें कौन कापियां देता? तो अगर किसी आरओ ने ये किया है तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि उसको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। चलें, एक और राय जो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। अभी कुछ ही दिन पहले ना हमने जब प्रोग्राम किया तो नौशीन इफ्तिखार साहिबा थी हमारे साथ प्रोग्राम में, और साथ में मेहरबानो कुरैशी साहिबा थी। नौशीन साहिबा का अपने हल्के के बारे में यह कहना था, ये डस्का का उनका कौमी असेंबली का हल्का था, कि यहाँ से पीटीआई कैसे जीत सकती थी, बाहर तो ये निकले नहीं है कैंपेन करने के लिए। तो यही सवाल अगर मैं आपसे पुट करूं कि हो सकता है पीएमएल ने आपके बारे में ये कि अभी आपने कहा भी कि मैंने तो निकला नहीं कैंपेन करने के लिए, तो आप जीत कैसे गए? ये तो शुक्र है कि पाकिस्तान की आवाम जाग रही है। ये अगर वो सो रही होती ना फिर ये बात करते तो फिर भी कोई। अब देखे ना, हम जाते हैं बाजारों में, जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं, इवन मैं कल इस्लामाबाद में था 2 दिन, जहाँ जाता है, चाहे कहीं में होटल पे जाता है, कहीं जाता हूँ, कहते जी हमने वोट तो पीटीआई को दिया, ये क्या हो रहा है? तो ये तो खैर इनको भी पता है, दिल पे हाथ रख के कसम खा के कहे कि जी ये लोग पीटीआई को वोट नहीं दे रहे थे। मेरे ख्याल से इस दफा तो कोई ये बात करे तो जाती करेगा। ठीक, हाफिज एहसान साहब आपकी तरफ आते हैं। बुराई हो नहीं सकती थी, ठीक है। अगर ये अगेन एहसान साहब ने भी बात की, तालपुर साहब ने भी बात की, देखिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है। और अगर हम इस तरह करते गए ना, आंखें चुराते गए कि जी खैर है बस जमहूरियत मुश्किल में, तो ये जमहूरियत तो कभी भी जाली मैंडेट से मुस्ताकब नहीं हो सकती। ठीक है, हाफिज एहसान साहब की तरफ मैं जाता हूँ जी। हाफिज एहसान साहब ये बताइएगा कि अब इंतखाबात के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला आया मखसूस नशिस्तों को लेकर, आप समझते हैं ये फेयर डिसीजन है, जिसमें आइन के आर्टिकल 51 का हवाला देते हुए कहा गया है कि जी ये मखसूस नशिस्तें सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी को दी जा सकती हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होकर कौमी असेंबली में या सूबाई असेंबलियों में आए हुए हों। लेकिन साथ ही फिर इसी आइन का आर्टिकल यानी कि 51 का ही दूसरा हिस्सा ये कहता है
کہ اگر کوئی آزاد امیدوار بھی کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے تو ان کے شامل ہونے کے بعد جو پروپورشن بنتا ہے اس پروپورشن کے حساب سے یہ طے ہوگا کہ مخصوص نشستیں یا اقلیتوں کی نشستیں کتنی جائیں گی؟ دیکھیں علی، کانسٹیٹیوشن بڑا واضح ہے اس معاملے کے اندر. ہر معاملے کے اندر ہمیں پولیٹیکل نیریٹو رکھنا چاہیے، لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ جا کے اس کی جو اسپرٹ ہے یا ہمارا الیکشن ایکٹ ہے وہ بڑا واضح ہے اس معاملے کے اندر. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے ایک فیصلے کے اندر دو چیزوں پہ فیصلہ کیا ہے. ایک انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 106 یا سیکشن 104 اور رول 92, 93, 94 کے مطابق ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کی پارلیمنٹ میں پریزنس موجود نہ ہو، جس نے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ الیکشن میں حصہ نہ لیا ہو، یا اس نے اپنی پرائیورٹی لسٹ جو ہے وہ جمع نہ کروائی ہو، یا اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پاکستان کی کسی اسمبلی کے اندر جیت کے نہ پہنچا ہو، یا ایسا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے جس کی پارلیمنٹ کے اندر پریزنس موجود نہ ہو، ان کو ایز اے پارٹی جو ہے وہ ان ایلیجیبل ہوتی ہیں ریزروڈ سیٹس کے لیے یا ویمن سیٹس کے لیے یا نان مسلمز کے لیے. تو یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل آف لا یا کانسٹیٹیوشن ہے. چونکہ یہ جنرل یہ ریزروڈ سیٹس ہے علی، یہ آج کے الیکشن میں تو نہیں ہے، یہ 2002 میں بھی تھیں، یہ 2008 میں بھی تھیں، یہ 13 میں بھی تھیں، یہ 18 میں بھی تھیں، اور اس کے اوپر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججمنٹس آئی ہیں. اب اس کے اندر جو ایکسیپشن سچویشن یہ آئی کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آئے، اور وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جب آئے تو وہ بیک بائی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی. اب اس پولیٹیکل پارٹی نے 3-4 دفعہ اس کانسٹیٹیوشنل برج کو کراس کرنے کی کوشش کی. پہلی دفعہ انہوں نے اپنے الیکشن سمبل کے اوپر پورا زور لگایا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک گئے، اور اس کے سیکشن 215 اور سیکشن 209 یا 10 کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کے اوپر مینڈیٹری ہیں، لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ٹھیک ہے. دوسری انہوں نے اٹیمپٹ کی جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہے کہ جب ان کو الیکشن سمبلز کے آئے تو ان کے بہت سارے لوگوں کو اس کے پارٹی ہیڈ نے ٹکٹس بھی جاری کیے، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی جو تھی وہ بیک آؤٹ کر گئی. پھر ان کی تیسری اٹیمپٹ اس کے اندر آئی جو آپ کا وحدت المسلمین ہے، اور وہاں سے بھی بیک آؤٹ کیے. اب چوتھی یہ جو آئی ہے یہ ایک پولیٹیکل موو ہے، ریئلائزنگ دا فیکٹ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی پاسبل نہیں ہے، اور جب اس پارٹی کا ہیڈ بذات خود جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آیا ہے اور اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کنسیڈ کیا ہے کہ میں جو الیکشن میری پارٹی نے جنرل الیکشن کے اندر نہیں لیا، تو اس حد تک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ٹھیک ہے. اب دوسرا آ جاتے ہیں، کیا یہ جو سیٹس ہیں یہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو دی جا سکتی ہیں؟ جو قومی اسمبلی کی 23 ریمیننگ سیٹس رہ گئی ہیں وہ بالکل نہیں دی جا سکتی اگر یہ ان ایلیجیبل ہیں ان سیٹس کو لینے کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس یا سنی تحریک کونسل ہے. اسی طرح دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی ان ایلیجیبل ہیں کیونکہ انہیں حصہ ان کے ہی مطابق ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی انڈیپینڈنٹ کے اگر آپ کو جوائن کیا ہے یا آپ کے جو جیت کے آئے ہیں اس کی اسٹرینتھ سے اوور اینڈ ابو کر دیا جائے کہ چونکہ ان کو نہیں ملی تو ان کو دے دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس حد تک کانسٹیٹیوشنلی لیگلی فیصلہ غلط ہے، اور جب یہ معاملہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر جائے گا تو ان کی اس بات کو نہیں مانا جائے گا. اور الیکشن کمیشن کے ایک ممبر نے اسے ڈائسینٹنگ نوٹ بھی دیا ہے. جہاں تک اوریجنلی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سنی اتحاد کونسل تھی یا نہیں، اس کو ملنا چاہیے تھا یا نہیں ملنا چاہیے تھا، میرا خیال ہے اس حد تک سپریم کورٹ آف پاکستان تک جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان دو سوال ہے، لیکن میں خیر اگلی مرتبہ جب آپ کے پاس آؤں گا نا ان دا سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ ان فیکٹ، تو میں تب آپ سے وہ پوچھوں گا جو آپ نے ابھی تک بات کہی ہے اس پر مزید کچھ سوالات ہیں جس پر میں چاہوں گا کہ کلیریفیکیشن بھی ہو جائے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ہم اختیار ولی صاحب کی طرف جائیں گے اور ان کی پارٹی کی اب آگے کے لیے کیا پالیسیز ہیں، کیا حکمت عملی اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اختیار ولی صاحب، شوکت یوسفزئی صاحب نے اب تیمور صاحب کی جو بات تھی اس کو انڈورس کرتے ہوئے کہا ہے کہ انکوائری ضرور ہونی چاہیے اور تاکہ پتہ چلے کہ اصل حقائق کیا ہیں. تو اس معاملے میں تو پی ٹی آئی کا کوئی ایسا ریجڈ ان کی اپروچ نہیں ہے. دوسری طرف یہ کہ جو عمران خان صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، کیا آپ اس پر ایگری کرتے ہیں کہ ہاں واقعی اٹس ٹائم کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسائل ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ان کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور اٹینشن ایز ویل، اور جو ادر پارٹیسپینٹس ہیں اور جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کا بھی، کہ
अफसोस की एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें 73% खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में धांधली को रिपोर्ट किया गया है। उन्होंने सर्वे दिया हुआ है, वो रिपोर्ट पड़ी हुई, आप जरूर उसको चेक करें। अगर वो अपने रिकॉर्ड पे आ गई है और ये हमारे साथ इस पे एग्री करते हैं, तो मैं इनके साथ एग्री करता हूं कि लेट्स हैव अ प्रोब होनी चाहिए। मैं भी कहता हूं कि प्रोब हो। जो इनके पास मैंडेट है हम इसको तस्लीम नहीं करते, कभी भी नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि अगर आप बात करते हैं पंजाब की, तो आपने पंजाब में डिलीवर क्या किया है? आपने 600 रुपए आटे का थैला 3000 तक पहुंचा दिया। आपने पेट्रोल की जो वादा किया था कि ये 60 रुपए में महंगा है, हम 40 में देंगे, क्या आपने किया? नहीं कर सके। आपने कहा था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो आपने किया। लोग आपको क्यों वोट देंगे? आप वैसे ही खुशफहमी में रहते हैं। बात आ गई है खैबर पख्तूनख्वा की। अच्छा, यहाँ पर साथ साथ ये भी बताते जाएं कि अगर केपीके में पीटीआई को वोट नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा या किसी और जमात को, तो क्यों पड़ेगा? और आपने पंजाब का बता दिया कि वहां पर पीटीआई ने कुछ नहीं किया, तो पीटीआई को वोट कैसे पड़ सकता था? यहां पर आप अपना भी बता दें कि आपने पंजाब में क्या किया कि जिस पर आपको वोट पड़ता। जी, हमने पंजाब में पीकेएलआई के हॉस्पिटल बनाया है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इससे पहले कहीं नहीं था। हमने आपको पंजाब में जो सड़क का सिस्टम दिया है वो शायद कहीं पे नहीं है। जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो कहीं पे नहीं है। आज जो मरियम नवाज कर रही है, हमने ऐसा ही पंजाब हमने आपको दिया था, पूरे सूबे को दिया था। मैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अगर आऊं तो आप चेक कर लें कि ये सूबा 2013 में महज 33 अरब रुपए का या 28 अरब रुपए का मकरूज था। आज ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा 1000 अरब रुपए का मकरूज है। तो आपको कोई वोट क्यों देगा? आपको जो ये मकरूज सूबा है जिसमें हमें आपके शाहाना ठाट बाट सब नजर आते हैं, जो आज पाकिस्तान में, मैंने बताया ना आपको कि पूरे पाकिस्तान में आप देख लें जो सबसे मकरूज सूबा है वो खैबर पख्तूनख्वा है, और वहां के वजीर आला का जो प्रोटोकॉल है वो वजीर आजम से भी ऊपर का है। तो आप अंदाजा करें, जहां पर बात हो बिलियंट्री के इल्जामात की, जिसमें ये भाई मेरे शौकत यूसुफजई साहब उस कमेटी के मेंबर बने थे कि इन्होंने हमारे साथ जाके साइट चेक करनी थी, असेंबली से हमारी कमेटी थी, ये हमारे साथ नहीं गए, ये हमें तारीखें देते गए। हमने इनको बताया कि हमें 2-4 साइट ही बता दो बिलियंट्री की, आपने वो दरख्त नहीं लगाए। 15 रुपए का एक एक दरख्त आपने 4000 और 5000 रुपए में लगाया है। 18-20 हजार लोग आपने वो भर्ती किए थे जिनको आपने खजाने से पैसे दिए थे कि सोशल मीडिया पर दिन रात लगे रहो, हमारे झूठे बयानिए को प्रमोट करो। क्यों आपको वोट देंगे? मुझे बताइए कि मालम जबे का इतना बड़ा स्कैंडल आपके गले में आपकी हुकूमत के, आई एम सॉरी मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी हुकूमत की बात कर रहा हूं, उसका तोक हो, तो आपको 1200 करोड़ रुपए के करप्शन के वोट क्यों देगा? जब आप स्कूल के बिल्डिंग्स पर, ठीक है, इस पर मैं जरा शौकत यूसुफजई साहब का जवाब ले लूं। झंडे छापते हैं, आपको कोई किस तरह वोट देगा? ठीक है, जरा मुझे बात तो देखिए, मेरे पास वक्त भी जरा कम है ना, मैंने फिर आखिर में हाफिज एहसान साहब की तरफ भी जाना है, आम सवाल पूछना था उधर भी। अगर कर लूं, मुझे ये बताइए कि अगर आपकी हुकूमत पर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के डिपार्टमेंट का कि आपने स्कूल के डेस्क फर्नीचर और बेंचेस चोरी करके उसको बेचा है, ठीक है, तो ठीक, आपको कोई जी वोट शौकत क्यों देगा? शौकत साहब अपना वजीर खजाना, सर आपने काफी पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए। शौकत साहब को जरा रिस्पॉन्ड करने दें। जी शौकत साहब, तो आपको कोई वोट क्यों देगा? जी प्लीज गो अहेड शौकत साहब। अगर जी शौकत साहब, बहुत शुक्रिया। असल में इनको बोलने का बड़ा शौक है। मैंने फैसला कर लिया, मैं इख्तियार साहब के साथ किसी दिन ना एक अलग से प्रोग्राम करूंगा। मुझे अलग बिठाएं, इससे पूरे इंटरव्यू करें, चूंकि देखें ये बिलियन ट्रीज और मालम जबा, ये हम जिस मुश्किल से गुजरे 8 महीने में, ये चीजें अगर हमारे गले पे होती ना तो हमें उल्टा लटकाया जाता। ये चीजें अब ये इल्जाम के हद तक तो ठीक है, इन्होंने इल्जाम लगा दिए, ये असेंबली में भी बोलता रहा, बार बार बोलता रहा, लेकिन ये कि देखें बिलियन ट्रीज सुनामी का अपना वेबसाइट मौजूद है। वो तो हमने बार बार इनसे कहा कि वेबसाइट पे देख लें और जाके वो जंगल चेक कर लें है या नहीं है। जितने हमने क्लेम किए हम आपको चैलेंज करते हैं कि जाके वो चेक करें, लेकिन ये वहाँ वो नहीं। बात नहीं करना चाहता हूँ कि वो वक्त भी चला गया और वो चीजें जो है वो
बहुत पीछे चली गई हैं। इस वक्त जो देखें पंजाब में आप देखें PMLN जो है मुरूसी सियासत पे उतर आई है ना, फैमिली पार्टी बनी हुई है, बेटी को बना दिया वजीर आला, उधर भाई को बना दिया वजीर आजम, और खुद पता नहीं क्या बनेगा, समधी को बना देगा वजीर खजाना, पता नहीं सारे इस तरह लाइन लग जाएगी। इन्होंने क्या खाक करना है, क्या इन्होंने मुल्क में करना है। अल्लाह हाफिज है, अल्लाह ये तो यार प्लीज यार जी बात जरा मुकम्मल करें। आप अपने बारी पे बोले, आपने बड़ी बातें की, मैं आपको सुनता रहा हूँ ना, ये काम मैं कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं तो आप भी बर्दाश्त करेंगे। देखिए नहीं, अब बाकी आपने इन्होंने कहा कि जी आइन, तो आइन हमने कहा हुआ है हमसे जी शौकत साहब यार आइंदा फिर मैं इसके साथ नहीं आऊंगा। अच्छा ये बड़ा बदतमीज आदमी है, इसके साथ मैं नहीं आऊंगा। प्लीज कंटिन्यू सर। ये क्या बात है यार, ये कोई तरीका है? तुम्हारी शक है, मैं तुम्हारे साथ कौन बैठ रहा है? इख्तियार साहब इस बहस में ना पड़ी है कौन किसके साथ बैठता है, क्यों बैठता है, क्यों नहीं बैठना चाहिए, उनको बात मुकम्मल करने दें प्लीज। नहीं प्लीज ऐसे लोगों के साथ ना लाएगा, देखो नेशनल टीवी है, लोग देख रहे हैं, आप अपने बात कर ली। जी शौकत साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिए जी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। आपने जो झूठ बोला वो सारी दुनिया देख रही है। आप हमें कह रहे हैं KP में आपको वोट क्यों मिलता यार, ये हमें बता रहे हैं, PTI को बता रहे हैं आप। आपकी तो जमानत जब्त हो गई है मेरे भाई, उस सूरत में कि सारी मशीनरी आपके साथ थी। चलो निगरान हुकूमत आपकी जमानत बताओ, इस हालत में आपकी जमानत जब्त हुई और आप बात कर रहे हैं। जी शौकत साहब बात मुकम्मल कर लें प्लीज। मैं भी भागते रहे यार प्लीज तुम्हारे जी शौकत साहब बात कंटिन्यू करें। इख्तियार साहब शरीफ को बात मुकम्मल करने दें प्लीज। इस तरह देखें ये अच्छा नहीं लगता है, और इसके साथ तो मैं वैसे भी नहीं बैठना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्या है, इसके साथ मैं क्या बहस करूँ। इसमें तस्लीम कर वो कौन भाई, तुमसे किसने पूछा है मैंडेट का? तुम जाओ ना, जाओ जिससे मर्जी बात करो, हमें क्या कह रहे हैं, जाए अदालत है, इलेक्शन कमीशन आपका है, पूछो। 5,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह थी, 5,000 रुपए, और तुम अभी तुम्हारी हैसियत क्या है? रुपए तुमने कहा? मैं इसको क्या कहूँगा, आप बताया नहीं, तो इसलिए बुलाते हैं हमें। आप अपनी बात जारी रखिए शौकत साहब, अगर आपने उनकी किसी कहीं भी बात पर रिस्पॉन्ड। देखिए ये भाई गलीज आदमी है, गलीज किस्म की बातें कर रहा है, इस तरह नहीं करना चाहिए ना। आपने बात, मैंने बात किया, आप बात कर रहे थे, मैं सुनता रहा। तुम इतने कितने घटिया इंसान हो यार, किस तरह की घटिया बातें करते हो तुम? घटिया इंसान हो। ठीक है, अच्छा अब जरा तुम्हारी हैसियत क्या है? जी चले, शौकत साहब भी अब प्रोग्राम का छोड़ेंगे। हाफिज एहसान साहब आपकी तरफ आते हैं जी। आखिर में मैं पूछना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2022 में जब पंजाब में 20 नशिस्तों का मामला था, तो ये कहा गया था, बल्कि 25 थी वो, क्योंकि रिजर्व सीट भी शामिल होनी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है, यानी कि दोबारा किसने चीफ मिनिस्टर बनना है और किसने नहीं पंजाब में, वो तब तक मामला रुका रहेगा कि जब तक वो बाई इलेक्शन नहीं हो जाता 17 जुलाई 2022 वाला। तो क्या इस मामले को हम एज ए प्रेसिडेंट लेके सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या कहा जाएगा? देखिए अली, वो टोटल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ये आपके जनरल इलेक्शन है, वो एक स्पेशल आपका इशू था, उसके अंदर वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी, और उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक इशू आया था, और उसके बाद जब डी सीट हुए थे तो फिर पूरे इलेक्शंस हुए थे, और उस इलेक्शंस के अंदर जो था वो PTI जीत गई थी उस चीज के अंदर, और फिर इनका चीफ मिनिस्टर जो थे वो बन गए थे। तो आप उसको इस फैक्ट्स के साथ कंपेयर न करें। अब इस चीज के अंदर ये है कि पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 80,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन से, आपके 12 करोड़ के करीब वोटर्स थे, उसके अंदर 6 करोड़ से ज्यादा लोग जो 6 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोटर्स है, उन्होंने वोट कास्ट किया है। अब इसके अंदर यही है कि हमें अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस और इन्हीं पार्लियामेंट ने अपने लॉ के अंदर उसको लिखा हुआ है, तो उसको इंडिविजुअली हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देख लेना चाहिए, और उसका फैसला जो है वो जल्दी हो जाना चाहिए। ये मुल्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह हमने पिछले 10 साल मैं ना मानू पे गुजारे हैं, मेरा ख्याल है कि अगले हमें नहीं गुजारने चाहिए, और जो जीता है उसे जेन्युइनली मानना चाहिए, जो हारा है उसे ऑपोजिशन में रहना चाहिए। और अगर वो कुछ चीज ऐसी बनती है, आप देखें ना कि अभी 3 पार्टीज का इस वक्त असेंबली के अंदर है, अब 2 पार्टीज एक तरफ है, आप कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं या दूसरा जाएं या लीगल मैयर्स लें, लेकिन सिर्फ ये आपका ब्लैंकेट के अंदर कह देना कि पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन रिग्ड है और सिर्फ हम ही जीते हैं, दूसरे उसके अंदर हारे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को डिस्क्रेडिट करना जो है वो मुनासिब नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने
جوائن کیا. اختیار ولی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ تھے, ان کا بھی شکریہ. اور تیمور تالپور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں جی, ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.